அனைவருக்கும் வணக்கம். सबको नमस्कार है. இப்போ நீங்க பார்க்க போற இந்த சிகிச்சைக்கு பேரு அனடாமிக் தெரப்பின்னு பேரு. ये देखने वाला चिकित्सा को नाम अनाटॉमिक थेरेपी, वो कानों से सुनकर चिकित्सा करना. நமக்கு பொதுவா நோய் வந்தா நாம் ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போறோம். மருத்துவர்கள் ஊசி போடுறாங்க, மருந்து மாத்திரை கொடுக்குறாங்க. हमको रोग होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवा गोलियां इंजेक्शन सब देते हैं. ஒரு சில வைத்தியர்கிட்ட போனீங்கன்னா யோகா, மூச்சு பயிற்சி, தியானம், மக்கு பஞ்சர், நியூரோ தெரப்பி, முத்ரா, ரேக்கி, பிராணி ஹீலிங், இந்த மாதிரி நிறைய தெரப்பி நம்ம பார்த்துருப்போம். कुछ डॉक्टर वालों योगा, रेकी, न्यूरोथेरेपी ये सब की तरीका के बारे में बोलते हैं. ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கிற இந்த தெரப்பியில் மருந்து மாத்திரையும் கிடையாது, மற்ற இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த டெக்னிக் எதுவுமே கிடையாது. ये चिकित्सा में मात्रा, गोलियां, इंजेक्शन जो कुछ नहीं है. அப்போது என்னதான் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா 6 மணி நேரம் நாங்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம், அதை நீங்கள் கேட்கணும். இதான் ட்ரீட்மெண்ட். ये चिकित्सा में क्या हो रहा है, 6 घंटे आप ध्यान से कानों से सुनिए, यही चिकित्सा है. ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஒரு நோயினா பொதுவாக ஸ்கேன் பண்ணணும், இல்லை பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கணும், இல்லை ஏதாவது சொல்லுவாங்க. இது நீங்கள் பேசினா ஏன் நோய் எப்படி குணமாகுன்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் உங்களுக்கு. आश्चर्य की बात है, एक रोग होने पर हम ब्लड टेस्ट करना और स्कैन करना, यहाँ जो कुछ नहीं है, कान हम बोलेंगे आप सुनेंगे, इसमें क्या कैसे रोग ठीक हो जाएगा. நமக்கு நோய் குணமானால் போதும் இல்லைங்களா? நம்மளை குணப்படுத்துகிற டாக்டரு 60 வயசு இருக்கணும், வெள்ளதாடி வச்சுக்கணும் கற்பனை பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா? हमको रोग ठीक होना चाहिए. हमारा डॉक्टर कैसे होना, वो चश्मा पहनने वाला और कोई तरीका है? இல்லை நான் ஒரு 50,000 ரூபா செலவு பண்ணி தான் நோயை குணப்படுத்திக்குவேன் அப்படின்னு சங்கல்பம் வச்சுருக்கீங்களா? नहीं तो 50,000 रुपये खर्च करने पर चिकित्सा करूँगा, ये संकल्प आपके पास है? இல்லை மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு தான் குணப்படுத்திக்குவேன்னு சங்கல்பம் வச்சுருக்கீங்களா? वो गोलियां दवाएं खाकर ही चिकित्सा करे, इसी संकल्प है आपको? நமக்கு தேவை நோய் குணமானால் போதும் இல்லையா? हमको क्या चाहिए, रोग ठीक होना चाहिए. அதனால் இது ஒரு சயின்ஸ். ये एक साइंस है. நம்ம உடம்புல ஒரு சுரப்பி இருக்கு. हमारा शरीर में एक गिल्टी है. அந்த சுரப்பி ஒரு நீரை சுரக்குது. वो गिल्टी एक विशेष द्रव को द्रवित करता है. அந்த சுரப்பியில் வர திரவம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நோய் குணப்படுத்துது. वो गिल्टी का द्रव सब व्याधियों को ठीक कर सकता है. அந்த சுரப்பியோட பேர் என்ன, அது உடம்புக்குள்ள எங்க இருக்குது, அது சுரக்கிற திரவத்தோட பேர் என்ன, அதை நமக்கு நாமே எப்படி சுரக்க வைக்கிறதுங்கிற டெக்னிக் எனக்கு தெரியும். वो गिल्टी का द्रव का नाम क्या है, कहाँ उत्पन्न होता है, वो टेक्निक ये बताते हैं. எனக்கு தெரியுங்கிறதுக்காக, நான் பெரிய ஞானிங்கிறதுக்காக உங்ககிட்ட பேச வரல, உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது அந்த தெரப்பி. हमको मालूम होने के कारण हम ज्ञानी है नहीं, इसे सिखाने के लिए आपके पास आता हूँ. அப்போ ஒரு 6 மணி நேரம் தொடர்ந்து நம்ம பேசுறதை கேட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே அந்த சுரப்பி எப்படி சுரக்கிறதுங்கிறத நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்துருவோம். 6 घंटे तक आप ध्यान से सुनने पर वो गिल्टी का द्रव कैसे अपने आप स्वयं द्रवित करने का तरीका सिखा सकता हूँ. அப்போ எனக்கு எந்த நோயும் வராது, வந்தா நானே அந்த சுரப்பி சுரக்க வச்சு குணப்படுத்திக்குவேன். मुझे कोई रोग नहीं आएगा, आए तो स्वयं द्रवित करके उसको ठीक कर सकता हूँ. என்னால் எவ்வளோ தெம்பா சொல்ல முடியுது, मुझे कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं. அதே மாதிரி நீங்களும் சொல்லணும்னா தயவு செய்து கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேளுங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் அந்த தைரியம் வந்துடும். इसके धैर्य आपको भी मिलेगा. 6 घंटे कान से सुनिए, आपको भी धैर्य मिलेगा.
6 மணி நேரம் டைம் இல்லாதவங்க முதல் 1 மணி நேரம் கேளுங்க, பிடிச்சதுன்னா மிச்சத்தை கேளுங்க. 6 घंटे समय ना होने पर पहले 1 घंटा ध्यान से सुनिए, सुनने के बाद आप इच्छा अनुसार बाकी विषय सुनिए. தொடர்ந்து 6 மணி நேரம் கேட்க முடியாதவங்க தினமும் 1/2 மணி நேரம் கேட்டாலும் போதும். कंटिन्यूस से 6 घंटे सुनने के आपको समय नहीं तो आधा घंटा रोज सुनिए. ஆனா எந்த நோயா இருந்தாலும் இந்த பேச்சை கேட்டு முடிச்ச அடுத்த நிமிஷம் உங்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். किसी भी रोग हो तो इस बात को सुनकर सुनने के कदम होने पर आपका धैर्य मिलेगा, आपको स्वास्थ्य निरोग बन जाएंगे. சர்க்கரை நோயாளி யாராவது இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க இனிப்பு சாப்பிட்டே சர்க்கரை நோய் குணப்படுத்தலாம். शक्कर रोगी होने पर भी आप शक्कर खा सकते हैं, शक्कर खाते वक्त आपका रोग ठीक हो जाएगा. பிபி இருக்கிறவங்க உப்பு போட்டு சாப்பிடலாம். आपको ब्लड प्रेशर होने पर भी नमक के साथ खा सकते हैं. கேஸ் ட்ரபிள் இருக்கிறவங்க உருளைக்கிழங்கு போண்டாவே சாப்பிடலாம், ஒன்றும் ஆகாது. जिनको गैस ट्रबल है वे लोग आलू खा सकते हैं. தோல் நோய் இருக்கிறவங்க கத்திரிக்காய் சாப்பிடலாம். वो सोरियास होने पर भी बैंगन खा सकते हैं. அதே மாதிரி கொழுப்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய் யாருக்கு இருந்தாலும் நீங்க எண்ணெய் பலகார தேங்காய் சாப்பிட்டே குணப்படுத்தலாம். मोटापन का रोग कोलेस्ट्रॉल है ना, इससे भी वो तेल के खाना भी खा सकते हैं. அதனால எந்த நோய்க்கு எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களோ அதை சாப்பிட்டே குணப்படுத்தலாம். जिस रोग को जो ना खावे ये बताते हैं ना, उसे खाकर आप रोग को ठीक कर सकते हैं. சர்க்கரை, பிபி, ஆஸ்துமா இந்த மாதிரி எந்த நோயா இருந்தாலும் 6 மணி நேரம் பேச்சை கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் நீங்க சாப்பிட்ற மருந்து மாத்திரை கண்டிப்பா நிறுத்த முடியும். शक्कर, बीपी, शुगर सबको दवा का खाने बिना इसे सुनने पर ठीक कर सकते हैं. அதனால ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும், வேற வழி இல்லை, தயவு செய்து கேளுங்க, கண்டிப்பா புரியும். आश्चर्य की बात होगा, कोई भी हो 6 घंटे सुनिए, आपका रोग ठीक हो सकता है. இந்த சிகிச்சை மூலமா எந்தெந்த நோயெல்லாம் குணப்படுத்தலாம், எந்தெந்த நோயெல்லாம் குணப்படுத்த முடியாதுன்னு முதல்ல பார்க்கலாம். ये चिकित्सा के द्वारा जो रोगों को ठीक कर सकते हैं, जो रोगों को नहीं ठीक कर सकते, इसे मालूम होगा. முதல்ல நம்ம உடம்புல வர நோய்கள் 2 வகைப்படும். हमारा शरीर में 2 तरीके के बीमार होता है. ஒன்று உள்ளிருந்து வர நோய், இன்னொன்று வெளியிருந்து வர நோய். एक शरीर के अंदर में उत्पन्न होना रोग और बाहर से आने वाला रोग. இப்போ உங்க கண்ணுல கத்தி எடுத்து யாராவது சொருகுனா அது வெளியிருந்து வர நோய். अपने शरीर पर कोई छुरी नाइफ से वो मार डालने पर बाहर से आने वाला रोग. பாம்பு கடிக்கிறது, ஆக்சிடென்ட் ஆகிறது, மண்டை உடையிறது, கை உடையிறது, இதெல்லாம் வெளியிருந்து வர நோய். शाम काटना और एक्सीडेंट, इसी तरह आने वाला रोग बाहर से आने वाला रोग है. நம்ம தெரப்பி மூலமா வெளியிருந்து வர நோய்களை குணப்படுத்த முடியாது. हमारा थेरेपी चिकित्सा के द्वारा बाहर से आने वाले रोगों को ठीक कर नहीं सकते. ஆனா உள்ளிருந்து வர நோய்களான சர்க்கரை, பிபி, ஆஸ்துமா, தைராய்டு போன்ற எல்லா நோய்களையும் குணப்படுத்த முடியும். अंदर से उत्पन्न होने वाला ब्लड प्रेशर, शक्कर, सब कुछ रोगों को हम ठीक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर एंड एड्स. அதனால நேரடியா சிகிச்சை ஆரம்பிக்கிறோம். இது ஒரு சொற்பொழிவு இல்லை, இது ஒரு சிகிச்சை. हम सीधे चिकित्सा शुरू करते हैं, वो भाषण देने वाला कार्यक्रम नहीं, ये चिकित्सा का कार्यक्रम है. एक माँ बच्चों को पैदा करती है, हम भी एक माँ का बच्चा है. दुनिया के सब लोग एक माँ के बच्चे हैं. एक माँ कैसे बच्चा पैदा करते हैं, वो मुंह में चपाती, रोटी सब कुछ खाते हैं, वो अंदर जाकर एक बच्चा पैदा होता है. रोटी को बच्चे बनने का ज्ञान किसका ज्ञान है, वो माँ का ज्ञान या शरीर का ज्ञान? वो माँ का ज्ञान नहीं, वो शरीर का ज्ञान ही बच्चा को पैदा किया. किसी माँ
अपने जान से बच्चे को पैदा कर सकते हैं। ऐसे कहें तो अपना शरीर में किडनी है ना, उसके भाग को रेखांकित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो अपना जान के द्वारा बच्चों को पैदा नहीं किया, शरीर के जान से बच्चों को पैदा करते हैं। वो डॉक्टर वालों और पीएचडी करने वालों सब लोग 2 आंग रखने वाला बच्चों को ही पैदा करते हैं। वो गांव के लोग स्कूल नहीं पढ़ाई है, वो भी इसी तरह बच्चों को पैदा करते हैं। क्या मालूम होता है, शरीर में ज्ञान है वो ही बच्चों को पैदा करते हैं। किसी माँ रोटी खाने समय हमारे पेट में रहने वाले बच्चों को आंग बनना, कान बनना, इसके लिए चपाती रोटी नहीं खाते। हम टीवी या दूरदर्शन देखकर क्या करते हैं, रोटी खाते हैं। रोटी खाने पर वो अंदर में रहने वाले बच्चों कैसे उत्पन्न होता है, वो शरीर का ज्ञान है। सोच लीजिए, वो हमारा शरीर बहुत बड़ा ज्ञानी है। वो रोटी को बच्चा बनते हैं, इसलिए हमारा शरीर दुनिया के बड़ा ज्ञानी है। दुनिया के सब साइंटिस्ट और डॉक्टर वालों सबसे हमारा शरीर ज्ञानी है। एक मशीन में रोटी और सब खाने के वस्तु डालने पर दूसरे ओर बच्चा पैदा हो सकते हैं, ऐसी मशीन अभी तक नहीं है। उसी तरह एक मशीन बनाने वाले को कितना पुरस्कार मिलेगा, वैसी मशीन है। जो माँ बच्चों को पैदा करते हैं वो भी वो मशीन है। आप भी आपको पुरस्कार दे सकते हैं। रोटी खाने पर एक बच्चे को पेट में उत्पन्न होने वाले ये शरीर को, इस शरीर इतना ज्ञानपूर्वक चिंतित करता है। इस शरीर को एड्स, कैंसर, टाइफाइड, ब्लड प्रेशर इसे ठीक कर सकते नहीं? जरूर कर सकते हैं। वो कैसा होता है इसे हम देखेंगे। कैसे हमारे शरीर में बच्चा उत्पन्न होता है। गर्भ थैली में एक सेल होता है। एक सेल से कुछ मटेरियल्स को लेकर गर्भ की थैली में जाकर रखकर वो बच्चा उत्पन्न करता है। माँ की रक्त ही एक बच्चा उत्पन्न करता है। वो कल्पना कीजिए, वो शरीर ही माँ है, वो रक्त ही रसोई घर, रक्त का चीजें रसोई घर का सामान है। वो रसोई घर का सामान लेकर हम रोटी, चपाती, समोसा आदि बनाते हैं। इसी तरह शरीर रक्त का सामान को लेकर पेट के अंदर में एक बच्चों को उत्पन्न करता है। शरीर ही माँ है, रक्त ही रसोई घर का सामान ही रक्त का सामान है। वो आंख, कान, नाक ये ही सांबर है। वो सभी अंग बनने वाले एक बच्चा ही वो रसोई बनने वाला मैटर है। अपने रसोई घर में एक रोटी का आटा खराब होने पर हमारा कैसे खाना मिलेगा? वो खराब खाना मिलेगा। वो खराब होने के कारण वो रोटी में नहीं है, वो माँ के पास नहीं है, रसोई घर में भी नहीं है। रसोई बनने वाला एक सामान में कुछ खराब है, इसलिए रोग है। वो खराब होने आटे को निकालने पर वो अच्छा रोटी मिलेगा। इसी तरह गर्भ के समय माँ के रक्त में मैग्नीशियम या कैल्शियम जैसे एक मटेरियल नष्ट होने पर वो खराब होने वो कैल्शियम या मैग्नीशियम से एक बच्चे को उत्पन्न होने पर वो क्या मिलेगा? वो कचरा हुआ एक सामान मिलेगा। जब उदाहरण के लिए वो मैग्नीशियम हम कहते हैं, गंधक कहते हैं, वो नहीं है। वो गर्भ के 10 महीने में रक्त में किसी विषय खराब होने पर उससे बना हुआ सामग्री वो कचरा हो सकता है। ऑपरेशन के द्वारा सिसेरियन कर सकते हैं। गर्भ के समय 10 महीने में रक्त का विषय में 1 या 2 चीज खराब होने पर अंगहीन बच्चा पैदा हो सकता है। दूसरा कारण, रसोई घर में नमक नहीं हो तो वो बना हुआ सामग्री खराब हो जाएगा। रक्त में जिंक नामक कोई वस्तु नहीं हो तो बच्चे के शरीर में कहाँ कहाँ जिंक रखना है वहाँ नहीं रखेगा, वो भी बच्चा बाहर आता है।
वो जिंक, उदाहरण के लिए जिंक कहते हैं, वो सभी सामग्री होगा, उसमें जिंक वो विषय नहीं होते, वो बच्चा अंगहीन से पैदा होता है। रीजन 2 है। तीसरा कारण, रक्त का कमी होने पर भी अंगहीन बनने का सोर्स होता है। शरीर का ऊंचाई और मोटापन के जैसे रक्त का एक कितना लीटर होना उसे का तरीका है। माँ के शरीर में रक्त कम होने पर बच्चों को कैसे उतना रक्त मिलेगा? वो तीसरा कारण, माँ के शरीर में रक्त कमी होने पर भी बच्चों का अंगहीन आएगा। वो 4 क्या है? वो मन में खराब होने पर भी शरीर भी अंगहीन मिलेगा। मन और शरीर को बहुत गहरी संबंध है। वो गर्भ के समय पति पत्नियों को झगड़ा होता है, वो मन में कुछ इच्छा नहीं, परिवार में प्रॉब्लम है। इसी के अनुसार गर्भ के समय माँ के मन में गर्भकाल से कुछ मन में खराब होने पर भी वो बच्चों को भी ये डिफिकल्ट आएगा। वो स्कैन रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट में वो मन का खराब होने का रीजन उसमें नहीं देख सकते हैं, वो भी देखना है। साधारण उदाहरण है, सेलफोन में ये मैसेज है आता है, वो पत्नी अपने माँ के घर जाने के लिए एक संदेश देने तो वो कितना खुश होता है। वो एनर्जी ड्रिंक पीने के बिना कुछ विषय को सुनने पर भी हमको संतोष मिलता है। वो पत्नी माँ के घर जाने के सुनकर क्या करते हैं, वो आधे घंटे वो बहुत खुशी से आराम से रहेंगे। वो पत्नी माँ के घर जाने वाली वापस आने पर वो क्या होता है, वो बहुत दुख होंगे। मन संतोष रहने पर शरीर अच्छा होगा, मन में दुख होने पर शरीर भी दुख होगा। एक चिकित्सा के आरंभ में वो मन को भी देखना चाहिए। वो 4 रीजन है। वो 5th रीजन, हमारा शरीर और ज्ञान ही है। वो ज्ञान कम होने पर भी बच्चा अंगहीन पैदा होता है। हम टीवी और मैगजीन में हम देख सकते हैं, वो 6 उंगलियां, 2 सिर है, 4 अंग है, इसे हम देख सकते हैं। ऐसा बच्चे कैसे उत्पन्न होता है? हमारा शरीर का ज्ञान खराब होने पर इसी तरह बच्चा पैदा होता है। इसे हम क्या फाइनलाइज कर सकते हैं? सिसेरियन और अंगहीन बच्चा पैदा करने के लिए 5 विषय हम देखना चाहिए। रक्त में एक विषय खराब होना, रक्त में एक विषय नहीं होना, रक्त का क्वांटिटी कम होना, मन में कुछ खराब होना, शरीर का ज्ञान बंद होना। आज से जो माँ गर्भकाल से 10 महीने ये 5 विषयों को ठीक करने पर अच्छा बच्चा पैदा कर सकते हैं। इसके बारे में हम सिखाते हैं, इसे हम आज सीखते हैं। 5 विषयों को ठीक तरह हम सीखने पर कोई दवा गोलियां का आवश्यकता भविष्य में नहीं होना चाहिए। एक माँ 5 बच्चों को पैदा करती है। वो माँ क्या करते हैं, 5 बच्चों के लिए 5 हृदय अपने शरीर में उत्पन्न करती है। 5 बच्चों के लिए 10 आंख। सिर्फ रोटी समोसा खाकर 5 हृदय, 10 आंख, कणय और सब लीवर सब कुछ पैदा करते हैं अपने शरीर में। वो हमारा शरीर कई अंग को उत्पन्न करने वाला एक फैक्ट्री है। एक माँ 5 हृदय उत्पन्न करने वाला शक्ति माँ के शरीर में है। वो माँ को अपने हृदय में एक होल बनाने पर उसे ठीक कर नहीं सकती। हृदय में एक होल बनाने पर उसे क्या करना है, ऑपरेशन और गोलियां मात्र ही खाना है नहीं, वो भी होल को ठीक नहीं कर सकती है। हृदय का होल या बंद वो हृदय का रोग नहीं है। वो हृदय का होल को बंद करने के तरीका शरीर को मालूम है। होल को बंद करने के लिए रक्त में एक चीज आवश्यक है। वो चीज अपने रक्त में खराब हो रहा है,
वो कोशिश करता है, वो खराब होने वाला एक चीज को रक्त से लेकर वो होल को बंद करने का कोशिश करता है, वो नहीं कर सकते हैं। रक्त का होल किसका विषय है? हृदय का विषय है या रक्त का विषय है? ये रक्त में खराब होने वाला चीज को ठीक करने के लिए हम एक टेक्निक यहाँ बताते हैं। वो टेक्निक को मालूम होने पर हृदय का होल को हम स्वयं बंद करने का तरीका मिलेगा। पहला कारण रक्त का विषय में एक चीज खराब हो रहा है। दूसरा विषय रक्त का चीज में एक विषय नहीं है, इसलिए उस रक्त हमारा हृदय का होल को बंद कर नहीं सकता। दूसरा कारण रक्त का विषय में एक चीज नहीं होने पर हृदय बंद नहीं कर सकता। और तीसरा कारण हमारा शरीर में जितना रक्त होना चाहिए, कितना लीटर होना चाहिए, उसे कम होने पर भी और हृदय का होल नहीं बंद कर सकते। रक्त का क्वांटिटी कम होने पर भी कोई भी रोग ठीक नहीं कर सकते। फोर्थ रीजन, मन में कुछ खराब होने पर शरीर का रोग ठीक नहीं कर सकते। हमारा हृदय में कुछ गड़बड़ी है, वो गैस ट्रबल होगा, उसमें होल नहीं है। अस्पताल आप जाते हैं, डॉक्टर स्कैन करने के लिए कहते हैं, स्कैन रिपोर्ट में वो होल नहीं है। अपने रिपोर्ट के बदले दूसरे आदमी को स्कैन रिपोर्ट पे देखते हैं, उस दूसरे आदमी का स्कैन रिपोर्ट में क्या होता है? सचमुच अपना हृदय में होल नहीं है। दूसरा आदमी का रिपोर्ट देखकर अपने हृदय में होल देखता है। आप क्या कर सकते हैं? अस्पताल के बाहर आते हैं, आप क्या सोचेंगे? हमारा हृदय में होल बना हुआ है, वो कैसे आता है? आप सोचकर क्या हो है, आपके मन में दुख होता है। अपने हृदय में होल नहीं है, डॉक्टर बताते हैं अपने हृदय में होल है। इसे सोच कर आप क्या करेंगे? 3 महीने के बाद इसे विचार में आप रखने पर क्या होगा? आपके हृदय में होल उत्पन्न हुआ होगा। मन ही रोग को उत्पन्न करता है, मन ही रोग को उत्पन्न करता है। मन को ठीक करने पर रोग को ठीक कर सकता है। मन ही एक कारण है। 5वीं कारण, हृदय का होल को बंद करने का तरीका शरीर को मालूम है। वो शरीर का ज्ञान नष्ट होने पर भी वो हृदय का होल नहीं बंद कर सकते। हृदय का होल, हृदय रोग हृदय का संबंधित विषय नहीं है, वो रक्त संबंधित विषय है। रक्त में एक वस्तु खराब होने पर हृदय रोग आएगा। रक्त की एक चीज कम होने पर हृदय होल आ सकते हैं। रक्त का क्वांटिटी कम होने पर भी हृदय रोग आएगा। मन में खराब होने पर भी, शरीर का ज्ञान खराब होने पर भी, यही 5 विषय है। आज ये 5 विषयों को ठीक रखने का तरीका हम सीख सकते हैं। ये 5 विषय को ठीक तरह रखने पर हमारा हृदय का होल बंद हो सकता है। ऑपरेशन और गोलियां दवाएं खाने की आवश्यकता नहीं। आप क्या सिखाए? हृदय का होल को कैसे बंद कर सकते हैं? आप क्या सोचेंगे? आंग और नाक और जीभ और कान में रोग आने पर कैसे ठीक कर सकते हैं? इसी तरह सेपरेट अंगों के बारे में हम नहीं बोलेंगे। हृदय रोग कैसा ठीक कर सकते हैं, इसे टेक्निक मालूम होने पर सभी अंगों का रोगों को ठीक कर सकते हैं। हमारा रोग कैसा कहाँ आता है? आंगों में, कानों में, वो शरीर में नहीं आएगा, रक्त में भी आएगा। अलग अलग अंगों के बारे में हम नहीं बोलेंगे। हमारा शरीर में अलग अलग अंग नहीं होता है। हमारा शरीर करोड़ों छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। ओलंपिक खेल आप देखे हैं, वो 5000 लोग एक साथ आकर इकट्ठा करेंगे। वो देखने पर क्या होगा? वो 5000 लोग एक साथ इकट्ठे होने पर एक पुष्प की जैसे हम देख सकते हैं। आप क्या कहेंगे? वो पुष्प वहां रखा हुआ है, हम नहीं बदलेंगे। वो हजारों लोग उल्टी से वो खड़े होने पर वो क्या होगा?
मोर के शरीर मिलेगा। आप क्या कहेंगे, वो मोर कहेंगे। मैं क्या कहूँगा, वो हजारों लोग वो दूसरी तरीके पर वो खड़ा हुआ है। इससे मालूम होने पर शरीर का विषय मालूम होगा। ये बाल कहेंगे आप, ये बाल नहीं है, हजारों सेल्स इकट्ठा हुआ एक अंग है। आप इसे क्या कहेंगे, नाक कहेंगे। वो नाक नहीं है, बाल के जैसे हजारों सेल्स यहाँ इकट्ठा हुआ है। हम माइक्रोस्कोप रखकर देखने पर हमारा शरीर में क्या होगा, वो सेल होता है। करोड़ों सेल इकट्ठा होने पर आंख और नाक कान इसे हम देख सकते हैं। ये सब सेल है। हमारा सब सेल्स दृष्टि में अलग अलग देख सकते हैं। वो मोटापन और पतलापन, वो काला है, रंगीला होता है। वो अंग का सेल वो देखने वाला काम का होता है। कानों का सेल सुनने के काम करता है। वो पेट का सेल्स जीर्ण का काम करता है। वो सब शरीर एक एक स्थान पर है। वो सेल्स वो कलर में डिफरेंट है, रखने के स्थान डिफरेंट है, काम करने में डिफरेंट है। सब सेल एक ही तरीके पर बना हुआ है। आप सब यहाँ बैठे हैं, ये सब लोग अलग अलग शक्ल में है। वो मोटापन है, वो पतला आदमी है, काला आदमी है, गोरा आदमी है। वो बैंक मैनेजर भी है, कंप्यूटर इंजीनियर भी है। किसी लोग बॉम्बे और दिल्ली के लोग हैं। इसी फर्क होते हैं। वो आंख और कान उसमें डिफरेंट है। हमारे शरीर के सब सेल्स डिजाइन में एक ही है। सभी सेल्स एक ही तरीका पर खाता है, पीता है, सब कुछ काम करता है। एक ही सिस्टम में रोग आता है, मर जाता है। सब सेल्स एक जैसे होने पर अलग अलग अंग को कैसे अलग अलग ट्रीटमेंट करना है। वो अलग अलग अंग को सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं है। एक आदमी को शक्कर रोग है, उसे ठीक किया है और उनका शहर बॉम्बे है। और दूसरा आदमी बहुत वेग से आते हैं, उसका शक्कर रोग को ठीक करना है, उनका स्थान दिल्ली है। डॉक्टर बताते हैं वो मुंबई आदमी का शक्कर को हम ठीक कर सकते हैं, दिल्ली का आदमी का ठीक नहीं कर सकता, इसे कर सकते हैं। इसी तरह करने पर हमको हंस आएगा। इसी तरह हमारा शरीर का अंग और कान के लिए अलग अलग शिक्षा बताने पर हमको तमाशा होगा। हमारा शरीर का सब अंग एक ही सेल से बना हुआ है, इसलिए एक तरीका की शिक्षा करना काफी है। आपको विश्वास कर सकते हैं। विश्वास करने के लिए हम कहते हैं, वो हम सुबह रोटी खाते हैं, वो कान के लिए, आंख के लिए, नाक के लिए अलग अलग खाते हैं। हम रोटी खाते हैं, सब शरीर का अंग उठलेस करते हैं। वो पानी पीते समय और कमर के लिए, पैर के लिए, हाथ के लिए सेपरेट कर सकते हैं। सांस लेने पर और कान और पैर के लिए दे सकते हैं। पेशाब जाने पर वो आंग का, कान का, नाक का वो सेपरेट कर सकते हैं। सब शरीर का एक ही जो कुछ खाते हैं उस विषय को शरीर का अंग लेते हैं। बाहर जाने पर भी सबका वेस्ट बाहर जाता है। इसे समझने पर एक सेल को ठीक कर सकते तो सब सेल को आप ठीक कर सकते हैं। विश्वास नहीं हो तो और भी एक उदाहरण है। वो नाक में, मुख में पायसन रखने पर मुंह मरते हैं या शरीर मरते हैं। विषम पीने पर सब सेल को जाने पर वो शरीर मर जाता है। जो कुछ खाते हैं बाल से पैर तक सब अंग उठलेस करते हैं। विष पीने पर मुंह नहीं मरता, सब शरीर मरता है। इसी तरह टेक्निक फॉलो पर मुंह में जो कुछ देता है सब शरीर को ठीक कर सकते हैं। जो आदमी विश्वास नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, बुराई विषयों को हम विश्वास करते हैं, सच्चाई को विश्वास नहीं करते। एक पार्क में बैठा हुआ है, दूसरा आदमी हमें पर मारने पर क्या करेंगे, हम भी मारते हैं। और दूसरी लड़की प्यार करने पर क्या करेंगे, वो एक आदमी मारने पर हम क्या करते हैं, वापस मारते हैं। प्यार करने पर हम क्या करेंगे, हम भी प्यार करते हैं। इसके लिए हम सोचते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है।
बुरी विषयों को हम विश्वास करते हैं, सच्चाई को बुरा कर समझते हैं। विष को पीने पर सब शरीर का अंग मर जाते हैं, वही बुरी बात है। एक तरीका को फॉलो करने पर सभी अंग को हम ठीक कर सकते हैं, ये सच्ची बात है। हम भविष्य में सच्चाई को विश्वास करें। सेपरेट वो अलग अलग अंग को अलग अलग दवाई नहीं है, अलग अलग चिकित्सा नहीं है। अब क्या करेंगे, अलग अलग अंग के बारे में हम नहीं देखेंगे, एक सेल को देखते हैं। एक सेल कैसे जीवित रहता है, उसको कैसे रोग आता है, और शुगर और आस्थमा बीपी कैसे एक सेल को आता है, उस रोग को स्वयं कैसे ठीक कर सकता है। 3 तरीके पर देखते हैं। सेल कैसा जीवित रहता है, रोग कैसा आता है, कैसे ठीक कर सकता है। ये 3 विषयों को ये सेल में रखकर हम ठीक करने पर शरीर का सब अंगों को हम ठीक कर सकते हैं। इसे कैसा है, इसे देखेंगे। हमारा शरीर करोड़ों सेल और रक्त नाड़ से बना हुआ है। सेल को एक घर के समान कल्पना कीजिए, रक्त को एक सड़क के समान कल्पना कीजिए। हमारा एक शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर से देखने पर एक घर और रोड अब हमको अंग में देख सकते हैं। इसी तरह हमारा शरीर एक घर है और रक्त नाड़ है, इसे बना हुआ है। एक पंखा चलता है, कैसे चलता है, चलाने के लिए करंट चाहिए। एक कार चलाने के लिए वो पेट्रोल का आवश्यकता है। वो बिजली बंद होने पर पंखा रुक जाता है, पेट्रोल खत्म होने के कार रुक जाता है। इसके क्या समझते हैं, ये कार्य करने के लिए एक शक्ति चाहिए। वो शक्ति को देने पर, कंटिन्यूस करने पर वो कार्य चल रहा है। वो सेल काम करने के लिए क्या शक्ति चाहिए। सेल एक घर का कमरा ओपन करके शक्कर को लेते हैं, रक्त से वो शक्कर उठाता है। वो सेल के अंदर एक स्टव है, वो स्टव के नाम माइटोकॉन्ड्रिया। वो शक्कर नाम का एक लकड़ी लेकर वो स्टव में रखकर वो शक्ति बनाता है। वो बत्ती चलाने समय एक टंबर को ऊपर रखने पर क्या होता है, वो बत्ती बुझ होता है। एक चीज जलाने के लिए ऑक्सीजन नामक दूसरा शक्ति भी चाहिए। वो शक्कर वो लकड़ी के समान है, उसके सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। शक्कर और ऑक्सीजन दोनों जलाने पर सेल में आग लगता है। वो आग गर्मी शक्ति उत्पन्न करता है। वो शक्ति प्राण शक्ति बन सकता है। इसको कॉस्मिक शक्ति ये कहते हैं। ये शक्ति के द्वारा बाल से पैर तक सब सेल्स काम करता है। हमारा सेल काम करने के लिए, शक्ति के लिए शक्कर और ऑक्सीजन का आवश्यकता है। आंग क्या करता है, और शक्कर और ऑक्सीजन दोनों को शक्ति लेकर देखने के काम करता है। कान शक्कर और ऑक्सीजन का शक्ति को लेकर सुनने का काम करता है। वो काम अलग अलग है, देखना और सुनना खाने के वस्तु एक ही है। और सोडियम कैल्शियम अपने काम के अनुसार कुछ बदल हो जाता है। वो बैंक का मैनेजर और सिक्योरिटी दोनों रोटी खाते हैं। वो रोटी खाकर उसके शक्ति लेकर वो काम अलग अलग है। वो मैनेजर काम करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए, और सिक्योरिटी के लिए विसिल चाहिए। इसी तरह आंग काम करने के लिए विटामिन ए चाहिए, हड्डी के लिए दूसरा विटामिन चाहिए। इसी तरह सभी सेल्स ऑक्सीजन और शक्कर दोनों खाते हैं, वही काम करते हैं। अपने अपने काम के लिए दूसरी सामग्रियों को उठा सकते हैं। आप दुकान पर लकड़ी मांगकर जलाने पर क्या मिलेगा, कोयला बनता है। वो कोयला को हम क्या करते हैं, बाहर डालते हैं। इसी तरह अच्छी वस्तुओं को हम लेकर आते हैं, बुरी वस्तुओं को बाहर डालते हैं। इसी तरह एक सेल बाहर से अच्छी विषयों को लेकर और खराब विषयों को बाहर डालते हैं। अच्छा विषय रक्त में जलकर क्या करेगा, अच्छा विषय बनकर रक्त का यूरिया बाहर
मूत्र द्वारा बाहर जा सकते हैं। एक सेल रक्त का विषय शक्कर को जलाकर वो यूरिया बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते समय जलाने पर क्या विषय बाहर निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करते हैं? वो बाहर निकालता है। वो रक्त में अच्छा विषय भी होता है, बुरा विषय भी होता है। वो सड़क पर अच्छा गाड़ी भी जाता है, कचरा गाड़ी भी जाता है। वो अच्छा गाड़ी क्या करता है? सबको अच्छा वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो कचरा गाड़ी क्या करता है? सबको कचरा को लेकर वो बाहर को ले सकते हैं। उसी तरह रक्त में अच्छी वस्तु भी है, बुरी वस्तु भी है। इसी तरह रक्त सभी सेलों को अच्छे विषयों को देखकर अपने अपने स्वयं डेवलप करता है। रक्त ही एक सेल का खाना है, रक्त ही एक सेल का दवा है। रक्त में खराब होने पर रोग आता है, स्वयं एक सेल को रोग नहीं आता। रक्त को ठीक करने पर सेल ठीक हो जाएगा। रक्त खराब होने पर रोग, रक्त को ठीक करने पर शिक्षा। अलग अलग अंग में रोग नहीं है, रक्त खराब होना ही रोग है। अभी तक हम शरीर के बारे में देखा है, अब एक एक अंग के बारे में देख सकते हैं। रक्त एक ट्रेन है, वो अंग को रेलवे स्टेशन समझिए। एक रेल किसी स्टेशन पर रुकने पर कुछ लोग उतरेंगे, चढ़ेंगे। रक्त हमारे शरीर पर जाने समय कुछ उतरेंगे, कुछ बाहर आएंगे। कुछ शरीर के अंग में जाते समय कुछ लोग अंदर जाएंगे, कुछ लोग बाहर आएंगे। वो विषय कौन है? इसके बारे में जानने पर रोग के बारे में हम समझ सकते हैं। अब हम एक एक रोग के बारे में देखेंगे। हम पहले बीपी, ब्लड प्रेशर के बारे में देखेंगे। ब्लड प्रेशर का क्या है? ब्लड प्रेशर क्या है? वो घर का कमरा ओपन करके, खोल करके रक्त एक सेल, रक्त का एक विषय है। वो खाने के पहले वो हृदय माँ है, उनसे पूछेंगे, माँ एक प्रेशर चाहिए। हृदय हम क्या समझते हैं? रक्त को शुद्ध करता है, वो शुद्ध नहीं करता। रक्त को क्या शुद्ध करता है? लिवर, किडनी, ये शुद्ध करता है। कुछ लोग कहेंगे हृदय रक्त को उत्पन्न करता है, वो ठीक नहीं है। रक्त को क्या उत्पन्न करता है? बोन मैरोस, हड्डी का मज्जा। हृदय क्या करता है? वो आलसी से आने वाला रक्त को क्या करता है? पंप करके स्पीड बनता है। ये देखिए, मैं अब ध्यान करता हूँ। ध्यान करते समय वो बीबी चेक पर करने पर लो बीबी होगा। वो लो बीबी रोग नहीं है। ध्यान करने समय लो बीबी होता है, अब ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान बंद होने पर हम एक्सरसाइज करते हैं, उस समय क्या करते हैं? वो बीबी रेस हो जाता है, वो भी रोग है। हम हाथ को काम करने पर वो बीबी ज्यादा होता है। दोनों हाथों में काम करने पर वो बीबी क्या होगा? वो ज्यादा होगा। इससे क्या मालूम होता है? हृदय स्वयं बीबी को ज्यादा मन नहीं सकता। कितना सेल काम करता है, उनको खाना देने वाला माँ ही हृदय है। ज्यादा सेल काम करने पर ज्यादा बीबी ज्यादा, कम सेल्स खाने पर कम बीबी होगा। मैं यहाँ से दौड़ता हूँ, अब क्या होगा? बीबी ज्यादा होगा। किसी आदमी दौड़ने पर बीबी ज्यादा होगा, तब हाई बीबी रोग नहीं है। कोई भी आदमी दौड़ नहीं सकते। किसी आदमी दौड़ने पर बीबी ज्यादा होगा, किसी आदमी ध्यान करने पर लो बीबी आएगा। क्या मालूम होता है? हाई बीबी और लो बीबी दोनों रोग नहीं है। वो नॉर्मल बीबी कहते हैं ना, वो क्या है? कोई आवश्यकता चिंता नहीं है। वो कुत्ता काटने के लिए आता है, हम स्लो मोशन में जाएंगे तो क्या होगा? नॉर्मल बीबी के लिए वो कुत्ता हमें काट कर सकते हैं। वो कुत्ता पीछे आता है, ज्यादा तेज से दौड़ देंगे, नॉर्मल बीबी नहीं रह सकता। वो तेंदुलकर वो सेंचुरी करते समय क्या होगा? हाई बीबी आएगा। जो आदमी काम तेज से करने पर बीबी ज्यादा होगा,
वो स्लो, वो कम आराम से करने पर क्या होगा, लो में भी आएगा, उसके बारे में कुछ परवाह नहीं है। ब्लड प्रेशर का कारण 5 मिनटों में आप सुनने पर ब्लड प्रेशर के लिए आप कोई परवाह नहीं कर सकते। हमारे शरीर में रोग आने पर 4 बातों के आवश्यक है। पहला, एक सेल ब्लड प्रेशर को देखेंगे, दूसरा वो सेल शक्कर सुनेंगे, 3 ऑक्सीजन सुनेंगे, 4 का विषय वो रोग को ठीक करने के लिए कुछ सामग्रियों को सोचेंगे। ये 4 विषय सेल के अंदर जाने पर रोग ठीक हो जाएगा। हमारा सेल में रोग आने पर वो सेल क्या कहेंगे, वो हृदय माप के साथ वो बीपी पूछेंगे, तब क्या करेंगे, हृदय बीपी ज्यादा बनेगा। 1 घंटा आधे घंटा बीपी ज्यादा होने पर वो सेल का बीपी मिलने पर वो रोग ठीक हो जाएगा। उसके बाद बीपी कम हो जाएगा। बीपी ज्यादा होने पर, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पर रोग ठीक हो सकता है। चिकित्सा के बाद वो बीपी कम हो जाएगा। वो एक रोग ठीक करते समय बीपी ज्यादा होगा, उस समय हम चेक करने पर बीपी ज्यादा होगा, इसके लिए हम परवाह नहीं कर सकते। हमारा शरीर में 5 विषय जो आदमी ठीक कर सकते हैं, इनको साधारण तौर पर बीपी ज्यादा होगा, बीपी कम हो जाएगा, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। ये 5 विषय में एक या दूसरा विषय कम होने पर क्या होगा, ये सेल को रोग ठीक नहीं होगा। क्या होगा, ये रोग ठीक करने तक बीपी ज्यादा होगा। ये सेल को रोग आने पर वो ठीक करने तक बीपी देना है। हाई बीपी आने का समय वो हृदय का रोग नहीं है। वो सेल का रोग ठीक करने के लिए वो पूछता है माँ से, बेहोश करता है, ये ही बीपी है। वो बीपी आते समय, वो तड़पते समय हृदय को ठीक करने की कोशिश ना करे, वो सेल का रोग को ठीक करने से वो तड़पना रुक जाएगा। लो बीपी का क्या मतलब है, वो हृदय भी वो टिश्यू से बना हुआ एक वस्तु है। वो टिश्यू में भी सेल है। वो टिश्यू को, सेल को खाने के वस्तु चाहिए। रक्त में जो कुछ वस्तु खराब होने पर वो भी सेल में भी खराब हो जाएगा। लो बीपी हृदय संबंधित विषय नहीं है, सेल संबंधित विषय है। लो बीपी हृदय संबंधित विषय नहीं है, रक्त का संबंधित विषय है। वो हाई बीपी और लो बीपी हृदय संबंधित रोग नहीं है, वो 5 विषयों का रोग है। ये 5 विषय को ठीक करने पर हमारा शरीर के सब सेल ठीक हो जाएगा। इसी तरह सभी सेलों को ठीक करने पर हमारा बीपी ठीक हो जाएगा। ये 5 विषय क्या है? ये 5 विषयों ठीक करने पर भविष्य में रोग नहीं आएगा। पहले आने वाले रोग कैसे ठीक हो जाएगा? आपको संदेह आएगा। हमारा 5 विषय भविष्य का विषय नहीं, हमारे शरीर में पहले आया हुआ रोग को ठीक करने का तरीका। आमतौर पर आंख में रोग आता है। हमारा आंख में दूरदृष्टि और कम दृष्टि आता है। हम क्या करते हैं? चश्मा पहनते हैं। वो चश्मा का पावर क्या होता है? भविष्य में ज्यादा बन जाता है, कम नहीं आता है। चश्मा का पावर ज्यादा होने पर क्या अर्थ हमको मिलता है? आंख खराब हो जाता है। वो आधा खराब होने आंखों को क्या करते हैं? फुल्ली डिस्ट्रॉय करते हैं। वो चश्मा को ज्यादा बनने वाला ट्रीटमेंट है, इसको डॉक्टर आवश्यक है। वो खराब होने आंखों को क्या करना है? ठीक करना वो डॉक्टर का काम है। वो खराब होना आंख को और भी खराब करने वाले आदमी को डॉक्टर कहते हैं। वो दूरदृष्टि और कम दृष्टि वो आंख का रोग नहीं है। ये 5 संबंधित विषय है। ये 5 विषय को ठीक करने पर वो आंख को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह किडनी फेलियर आता है। वो 50% खराब होने पर हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, डायलिसिस करते हैं, दवा खाते हैं। वो प्रतिशत बढ़ा जाता है। 50% खराब होने किडनी को क्या करते हैं? 70%, 80% डेवलप करते हैं, खराब हो जाता है। किडनी फेलियर किडनी संबंधित विषय नहीं है, वो 5 सामग्री का विषय है। 5 सामग्रियों को अच्छी तरह रखने पर वो खराब हुआ किडनी को ठीक कर सकता है।
वो आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात है, ये 5 सामग्रियों को ठीक करने पर भविष्य में आने वाले रोगों को ठीक कर सकता है। आया हुआ रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं? अवश्य ठीक कर सकते। ये हथेली में वो चमड़ा है, ये चमड़ा वो नया बनकर नया नया चमड़ा आता है। पैर के चमड़ा भी जाने पर नया चमड़ा आता है। वो नाक नया नया आता है। वो काट करने पर बाल भी नया उत्पन्न होता। ये 4 हम देखते हैं। इसी तरह बाल से पैर तक सब अंग नया नया बनकर नया अंग उत्पन्न होता है। वो शाम कैसे 1 महीने के अंदर दूसरा चमड़ा लेता है, इसी तरह हमारा शरीर को नया बनता है। इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। हमारा शरीर में अंदड़ी है ना, हमारा अंदड़ी का सेल्स 36 आवर्स में मरकर दूसरा सेल्स पैदा होता है। हमारा रक्त का व्हाइट सेल्स है ना, 13 दिनों में मरकर नया बनता है। आरबीसी 120 दिनों में नया बनता है। लिवर 1 साल में नया बनता है। इसी तरह बाल से पैर तक सब सेल्स कुछ समय के अंदर में नया बनता है। इसी तरह हमारा शरीर का सब सेल्स पुराना वस्तु नहीं है, वो नया वस्तु है। 1 साल के अंदर में सब सेल्स नया बनता है। इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करते। इसी तरह 1 साल के अंदर में सब सेल्स नया बनता है। इसके कारण हमारा शरीर में किसी भी रोग यहाँ नहीं रहेगा। हमारा कुर्सी 3 महीने तक इधर उधर डालने पर क्या होता है, कुछ खराब हो जाता है। वो चेयर का बुश को अपने अपने स्वयं नया बनने का तरीका उनको नहीं मालूम। पैर से हम 50 सालों से हम चलते हैं फिरते हैं। वो पाव कैसा होता है, वो डैमेज होता है नहीं। वो हाथ में कई काम करते हैं, वो क्या खराब होता है, वो अच्छा है। इसी वो लकड़ी का बना हुआ कुर्सी वो 4 साल के बाद क्या होता है, खराब होता है। हम क्या करते हैं, 50 सालों से हम पैर चलते हैं फिरते हैं, वो कम होता है पैर। इस हाथों से हम कितनों सालों से काम करते हैं, वो हाथ कैसा है, वो अच्छा है। वो यहाँ का सेल नया है। वो बाल से पैर तक सभी शरीर का सेल्स क्या करता है, 1 साल के अंदर में नया नया बनता है। 1 मिनट में 300 करोड़ सेल्स मरता है। वो हाथ ऐसा करने पर एक गंदगी आता है, वो गंदगी नहीं है, वो मरा हुआ सेल्स है। वो मल कैसा होता है, पीला जाता है, वो भी मरा हुआ सेल्स है। वो मूत्र का द्वारा भी सेल बाहर जाता है। 1 मिनट में 300 करोड़ सेल्स उत्पन्न होता है और मर जाता है। 1 मिनट 300 करोड़ सेल्स मरता है और नया बनता है। ये 5 सामग्रियों को ठीक करने पर वो 3 करोड़ों सेल मरता है ना, वो इन रोगों को हम निकाल भी सकते हैं। आंख से पैर तक सबको ठीक कर सकते हैं। बीपी आते समय गोलियां खाते हैं, क्या होगा? हाई बीपी और लो बीपी वो रोग नहीं है। हम देखेंगे एक आदमी को हाई बीपी आया है, डॉक्टर के पास जाने पर क्या होगा, दवा देते हैं। ये दवा खाने पर ये सेल्स को ठीक कर सकता है या हृदय को ठीक कर सकता है? वो दवा सेल का रोग को ठीक करता है, हृदय को क्या करता है? हृदय का बीपी को कंट्रोल करते हैं। हृदय का बीपी को वो दवा कंट्रोल करता है। अब क्या होता है, सेल का रोग को नहीं ठीक करता। जो लोग 3 महीने वो बीपी के लिए दवा खाते हैं, सेल का रोग को ठीक नहीं करते, वो हृदय को कंट्रोल करते हैं। 3 महीने कंटिन्यूसली वो दवा खाने वाले एक दिन दवा को ना खावे, बीपी रेस जाता है। क्यों रेस होता है? 3 महीने के पहले 10,000 सेल्स को रोग हो, उसे ठीक करने के लिए हृदय बीपी ज्यादा बना। आपके शरीर में ये 5 सामग्री ठीक होने के कारण या सेल्स का रोग को ठीक नहीं किया। 5 सामग्री को ठीक करने पर दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। 5 सामग्रियों को ठीक करने वो छोड़कर हम क्या करते हैं, दवा खाते हैं। 3 महीने वो दवा खाया है ना, उस समय हमारा 10,000
सेल्स का रोग को हम ठीक नहीं किया। वो 3 महीने का 10 लाख सेल्स का रोग ज्यादा बढ़ा। वो दवा को बंद होने पर बीपी ज्यादा होता है, इसलिए हमारा रोग बड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं? बीपी का दवा खाने पर बीपी कंट्रोल होता है, दवा को बंद होने पर बीपी ज्यादा होता है, इसलिए हम भय के कारण हम मरण तक क्या करते हैं? बीपी का दवा खाते हैं। वो बीपी का दवा खाने पर क्या होता है? जीवन पर उसका डोज ज्यादा इंक्रीज होता है। वो रोग कम नहीं आता, वो दवा का डोज कम नहीं आता। हमारा दवा का डोज ज्यादा बनने पर क्या होता है? हमारा रोग ज्यादा बढ़ा जाता है। एक डॉक्टर क्या करना है? हेवी डोज देता है, पहले हेवी डोज देना है। दिन ज्यादा होने पर डोज को कम करना चाहिए। कुछ ही दिनों में तुम्हारा रोग ठीक हो गया, वो गोलियां ना खावे, इसे कहना ही डॉक्टर है। आपका डॉक्टर क्या करते हैं? छोटा डोज देता है और बड़ा डोज देता है और बड़ा बनता है। हमारा डॉक्टर डोज ज्यादा देकर हमारा रोग को भी बड़ा बनाते हैं। तुम्हारे आपके रोग को कम करने के लिए डॉक्टर आवश्यक है, बड़ा करने के लिए डॉक्टर का आवश्यक है। डोज ज्यादा देने वाले डॉक्टर क्या करते हैं? वो बुरा चिकित्सा देता है। वो सिंपल प्रोसीजर है। वो ब्लड प्रेशर के लिए वो दवा जो खाते हैं आप रोग को उत्पन्न ज्यादा करते हैं। कोई आदमी भय ना रखे। हमारे ये 5 सामग्रियों को ठीक करने पर आप खाते हैं ना वो बीपी टैबलेट्स 3 महीने के अंदर कम करके एक दिन वो दवा को बाहर डाल सकते हैं। ये 5 सामग्रियों को ठीक करने पर 1 मिनट में 300 सेल्स नया बनते हैं ना, वो नया आने वाला 300 सेल्स वो निरोग सेल बनेगा। हमारे बनाने वाले 5 सामग्रियों को ठीक रखना है। 1 मिनट में 300 करोड़ होने पर 3 महीने में कितना सेल्स नया बनता है। इसके बाद बीपी दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। बीपी एक रोग नहीं है। ऑपरेशन का समय डॉक्टर क्या करते हैं? छुरी से यहाँ फाड़ डालते हैं। वो ऑपरेशन का भाई छुरी से फाड़ डालने पर हमारा बीपी ज्यादा बनेगा। संदेह हो तो चेक कर दीजिए। आपके बीपी को चेक करने पर नॉर्मल होगा। एक ब्लेड से फाड़ डालने पर बीपी ज्यादा बनेगा। तब बीपी कैसे बढ़ा जाता है? कचरा हुआ सेल को नया बनने के लिए वो बीपी ज्यादा बना। वो एक आदमी को चेक करने पर बीपी नॉर्मल होगा। वो शाम को अपने पैर के सामने रखिए, वो क्या होगा? बीपी ज्यादा होगा। वो शाम बाहर जाने पर हमारा बीपी साधारण होगा। आपको रोग है, वो शाम को देखने पर वो काटने पर क्या हो? हम मर जाएंगे। इसे सोचकर हमको बीपी ज्यादा बनता है। वो शाम का विषय अंदर जाने पर वो विषय को निकालने के लिए वो बीपी चाहिए, इसलिए वो बीपी ज्यादा बनता है। शाम बाहर जाने पर हमको बीपी नहीं चाहिए, वो नॉर्मल बनता है। साधारण तौर पर बीपी ज्यादा और कम नहीं होगा। हमको शरीर को आवश्यक पड़ने पर वो ज्यादा बनता है और कम होता है। सेल का रोग आने पर उसे ठीक करने के लिए बीपी ज्यादा आता है। वो 5 सामग्री ठीक होने पर बीपी नॉर्मल हो जाएगा। वो 5 सामग्रियों में कुछ कमी होने पर बीपी ज्यादा होगा। बीपी को कंट्रोल करने के लिए दवा नहीं खाए, सेल का रोग को ठीक करना है। ऑपरेशन के समय करोड़ों सेल्स मरता है, उसे ठीक करने के लिए बीपी ज्यादा बनता है। ऑपरेशन का समय बीपी ज्यादा होने पर रक्त बाहर जाएगा। ज्यादा रक्त बाहर जाने पर मरण आता है। इसलिए ऑपरेशन करने समय बीपी को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाएं डॉक्टरों को देना पड़ेगा। वो बीपी का दवा वो ऑपरेशन का में डॉक्टर देने वाला एक सामग्री है, पेशेंट को देने की आवश्यक नहीं है। रोगी बाहर आने पर वो सड़क में वो बीपी चेक करने के लिए वो मशीन है, उसे वो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑपरेशन के समय बाहर रक्त बाहर जाने के लिए रोकने के लिए बीपी को कंट्रोल करने के लिए आविष्कार किया है। वो दवा को साधारण मनुष्य खाने की आवश्यकता नहीं है। वो दवा बनाने वालों कंपनियां है ना,
वो सोचते हैं कैसा कमाना है। वो दवा कंपनी वालों व्यापार ज्यादा बढ़कर वो पैसा अपने जेब में रखने के लिए वो सूत्र है। वो दवा कंपनियों ने आविष्कार किया है ब्लड प्रेशर नाम का एक रोग है। ब्लड प्रेशर का रोग दुनिया में नहीं है। ब्लड प्रेशर का रोग करने वाला वो डॉक्टर नहीं है। कंपनियों का आविष्कार हुआ एक रोग है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आते समय क्या करना है, वो सेल का रोग को ठीक करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए ब्लड प्रेशर के लिए दवा गोलियां ना खावे। हम बताने वाले 5 सामग्रियों को ठीक करने पर ये रोग ठीक हो जाएगा। गोलियां को 3 महीने में कम करके बंद कर सकते हैं। जीवन पर गोलियां दवाई खाने की आवश्यकता नहीं। ब्लड प्रेशर का रोग चेक करने पर आता है, वो चेक नहीं कर सकता। चेक करने में कोई फायदा नहीं है। वो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा, हमको शक्ति होने पर वो कम और बड़ा होने पर कोई बात नहीं है। हृदय नामक रेलवे स्टेशन में रक्त नामक रेल आते समय क्या होता है हमें देखा है। रक्त लंग्स के अंदर जाते समय क्या होता है इसे देखेंगे। नाकों के द्वारा सांस लेने पर हवा लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स हवा से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब सामग्रियों को रक्त में मिलाता है। हवा के सामग्रियों को लंग्स के द्वारा रक्त में मिलाता है। ये काम लंग्स करता है। अब बाल से पैर तक रक्त का हवा के संबंधित विषय वो लेकर जाता है। शरीर के सब अंगों को हवा के खाना देने वाला काम करने वाला मां लंग्स है। हवा के ऑक्सीजन एक सेल के अंदर जाकर खराब होने पर कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा बाहर आता है। इसी तरह हवा अंदर जाने पर एक सामग्री दूसरा सामग्री के सामने बाहर आता है। वो सेल क्या करता है, अच्छी हवा के अच्छी विषयों को लेकर खराब विषयों को बाहर डालता है। वो बुरा हवा रक्त के द्वारा घूमकर लंग्स के अंदर आता है। लंग्स क्या करता है, बुराई हवा को नाक से बाहर देता है। शरीर के सब अंगों को खाने देने वाला मां ही लंग्स। वो हवा की तरह रोटी देता है। वो बुराई हवा को बाहर देने वाला छोड़ने वाला काम करने वाला मां ही लंग्स। तेज से दौड़ने पर लंग्स ज्यादा काम करता है। ध्यान करते समय लंग्स कम काम करता है। वो लंग्स हमेशा ज्यादा काम नहीं करता। अब ज्यादा काम करने पर वो हवा ज्यादा देने के लिए मांगने के लिए ज्यादा हवा मांगता है। अब बताइए वो आस्थमा वीसिंग वो अंग का रोग है या लंग्स का रोग है। हमारा शरीर में जितना अंगों को हवा चाहिए इसे मांगने का काम है वीसिंग और आस्थमा। ठीक ना समझने के कारण अंगों को चिकित्सा करने के बाद बदले हम लंग्स को दवा देते हैं, चिकित्सा लेते हैं। ज्यादा लोग आस्थमा के लिए वीसिंग के लिए दवाई गोलियां खाते हैं। वो खाते समय वो वीसिंग वो दवा को ज्यादा करते हैं या कम करते हैं। वो आस्थमा वीसिंग यहाँ का संबंधित विषय नहीं है। इसे ना समझकर क्या करते हैं, ज्यादा गोलियां खाते हैं। बाल से पैर तक सब अंगों को हवा का आवश्यक हवा देने पर वीसिंग आस्थमा नहीं आएगा। हमारा किडनी क्या करता है, वो पानी पीते समय उसका अच्छी सामग्रियों को लेकर सभी अंगों को देता है। वो पानी वो रक्त के साथ सभी अंगों के जाकर उनको अच्छी सामग्रियों को सब अंगों को देता है। पानी का अच्छा विषय लेकर वो खराब हुआ वस्तु को बाहर निकालना कार्य को हम मूत्र से बाहर निकालते हैं। वो किडनी क्या काम करता है, पानी का सब अच्छी सामग्रियों को अंग में लेकर वह बुराई वस्तुओं को बाहर निकालते हैं मूत्र के जैसे। किडनी फेलियर किडनी संबंधित रोग नहीं है। हमारा शरीर का सब अंगों का पानी संबंधित रोग को
किडनी फेलियर कहते हैं। सब अंगों को पानी का सामग्री को ठीक तरह करने पर किडनी संबंधित रोग ठीक हो जाएगी। इससे क्या करते हैं, किडनी को डायलिसिस करते हैं, किडनी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। हमारा थेरेपी में उजरा हुआ किडनी को अंदर ही हम ठीक कर सकते हैं। क्या हम करते हैं, किडनी को निकाल कर दूसरा किडनी हम, वो पुराना किडनी कैसे खराब हुआ, वो खराब हुआ का कारण हम समझे तो वही किडनी को हम नया बन सकते हैं। सब सेल्स को हम हवा का सामग्री ठीक रखने पर किडनी को हम ठीक रख सकते हैं। उसी तरह खाना हम खाते समय रोटी समोसा इसी तरह खाते हैं। वो किसको मालूम है, मुंह को मालूम है, अंग को नहीं मालूम। हमारा खाना रोटी मुंह में जीर्ण करके वो पेट में जीर्ण करता है और अंतड़ी में जीर्ण करता है। वहाँ एक द्रव वो जीर्ण वाले सामग्री को उठाने के लिए वहाँ एक सामग्री है, वो क्या करता है, लिवर को देता है। वो लिवर ये सामग्री वो रक्त का रेलवे स्टेशन के द्वारा, वो लिवर का रेलवे स्टेशन रक्त का रेल आते समय अच्छी सामग्री को लेकर सब अंगों को देता है। वो रक्त का सभी सामग्रियां लिवर के अंदर जाकर वहाँ खाना देकर वो कचरा हुआ सामान को लेकर वह रक्त के द्वारा बाहर देता है। लिवर का क्या काम है, सब सामग्रियों को लेकर वह कचरा हुआ सामान को निकालने वाला लिवर का काम है। वो लिवर क्या करता है, अच्छी सामग्रियों को लेता है, बुरी सामग्रियों को बाहर देता है। किडनी क्या करता है, अच्छी पानी को लेता है, बुरी पानी को बाहर देता है। लंग्स क्या करता है, अच्छी हवा को लेता है और बुरी हवा को बाहर देता है। किसी अंग को अलग अलग ठीक नहीं कर सकते। सभी अंगों को खाना का सामग्री को ठीक करने पर अंग को ठीक कर सकता है। सब अंगों को पानी का सामग्री को ठीक करने पर लिवर को ठीक कर सकता है। सभी अंगों को सेल को हवा का सामग्री देने पर लंग्स का प्रॉब्लम ठीक कर सकता है। सब सेल्स को रोग नहीं हो तो हमको बीपी नहीं आएगा। सभी अंगों को अलग अलग ठीक नहीं कर सकते। हृदय को हवा और पानी और सभी सामग्री, हवा देने वाला लंग्स, पानी देने वाला किडनी, इससे ठीक करने पर हृदय को ठीक कर सकता है। सभी लिवर, लंग्स को हवा देने वाला अंग, लिवर को पानी देना, ये सबको सब सामग्री देने पर सभी ठीक हो जाएगा। शरीर में रोग हो तो सब सेल्स को ठीक करना है। अलग अलग रोग को चिकित्सा नहीं कर सकते।